Hello friend, how are you doing? What's happening? What's going on? I hope you're not breathing the 1000 plus AQI air. Where I am right now, यहाँ पे भी I guess 200-250 से तो पार ही होगा. Actually it does look much cleaner than that, so somewhere in the ballpark of 130 to 180 I'm thinking, and how it is so normalized for us. 180, 200, 250 का AQI is like top notch. After seeing the AQI in Delhi and the stunts that government is pulling off, and people are well aware of what the government is, how the government is cheating the public, we are still very oddly calmly silent, not raising voices against what the government's been up to. And regarding what came out अभी जो हरियाणा वाला इलेक्शन का डेटा आया है, how many forged votes are there, and how the Selection Commission of India has been destroying the democracy, we still are oddly quiet, not raising questions or voices. This is the new normal. से आज से 7-8 साल पहले ये चीज़ होती, लोगों का जो रिस्पॉन्स होता थोड़ा ज़्यादा होता. Now it's everything is just dialed down. कि किसी को हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. We're just making reels about it, and that is the whole reality at this point. We all have become farmers, engagement farmers. Hello Conti. It's a genuine question though. Like, how do people ride on the Continentals, pulling off these 500,000 kilometer ki ride, like sitting like that in that position? Bro, I won't be able to go out for coffee on that cafe races, and people are touring freaking Himachal or India on the cafe races. Also, this is what, November 10th. 10 नवंबर है आज भाई. मैं टी शर्ट में बाइक चला रहा हूँ. हिमालयाज़ के फुट हिल्स में पहाड़ दिखता है यहाँ पीछे. यहाँ से 1 घंटे में मैं हिमाचल एंटर कर जाऊँगा. This is beyond me. Like, what has happened, man? Climate change is the answer, but as one non-biological being said once, climate नहीं चेंज हो रहा है मित्रों, हम चेंज हो रहे हैं. हमारी ठंड सहने की क्षमता बढ़ गई है. Did he say that? Something like that? Something on those lines? I mean, sir, please, with due respect, अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो जिस पद पे बैठे हो उसकी रिस्पेक्ट कर लो. Also, I read this somewhere that criticizing your prime minister or even your chief minister is easier because इसमें जो repercussion के chances होते हैं are very meek. बहुत ही rarely होगा कि तुम प्राइम मिनिस्टर को पूरा दिन गाली निकाल रहे हो तो तुम पे कोई एक्शन हो या फिर कुछ हो. बट जो लोकल MLAs होते हैं या फिर कोई लोकल जो होते हैं ना बिजनेसेस वगैरह करते हैं शेडी टाइप के, तुम उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ, स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग देम और ब्रिंगिंग देयर शिट शो टू लाइट. देयर इज़ अ वेरी हाई चांस अपनी गांड से हाथ धोना पड़ जाएगा. ये 1-2 जर्नलिस्ट के साथ हो चुका है अभी, who were raising their voices against the corruption or bringing it into the limelight, and yeah, they were. और इससे एक बात ये भी पता लगती है कि इंडिया में किसी को मार देना और फिर उसके कोई रेपरकशन ना होना, as long as you are being favored by the ruling party, it's all good. You can do anything. You can kill anyone you please. Again, as long as you have ties with party. Big statements coming out of my mouth. कल को पता लगा मेरे पता साफ हो गया. खैर, ऐसे झांट जैसी ज़िंदगी जी के कर भी क्या लेगा इंसान. भोसड़ी वाले खोद के टैक्स तो ले जाते हैं, लेकिन भरते कहाँ पे पता नहीं. बहन के टके इनसे सड़कें नहीं इनसे बनती. एयर क्वालिटी का तो क्या ही बोलना. दिल्ली में जाके इंसान जहर खा ले तो बचने के ज़्यादा चांसेस है देन ब्रीदिंग इन दैट एयर. गजब भाई गजब. दिवालियाँ मनानी है, इन्हें पटाखे फोड़ने हैं, इनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जा रहे हैं. ओह वाह, सेक्सी. थोड़ी बहुत जो खुशियाँ इस दुनिया में बच गई भाई. आई गेट इट, यू बॉट द KTM. मैं जो रोड में चला जाता भाई, डिवाइडर टावर है, कहीं तो जस्टिफाई करना होगा अपना परचेज. यहाँ पे जो खुशियाँ बची है वो आई थिंक मटेरियलिज्म में ही है, क्योंकि सरकार ने तो ठान रखा है जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसको तो एकदम पाताल की गहराइयों में लेके ही जाना है. कितना ही वाहियात या फिर चूतिया इंसान तुम्हें होना पड़ सकता है इसलिए कि तुम अपने सिटीजन्स को बेयर मिनिमम भी ना दे सको जिन्होंने तुम्हें पावर में बिठाया. वो हालांकि अलग बात है कि अब तुम खुद ही बैठ गए हो बस वहाँ पे कुंडली मार के. इट्स अ रियली सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. मतलब क्या कर लोगे तुम, क्या करना क्या चाह रहे हो वैसा, या देश को वैसे ही आग लगाना चाह रहे. ऐसा लगता है पॉलिटिशियंस ने ना कसम खाई है कि जब तक गांड नहीं मार देंगे ना हिंदुस्तान की, तब तक
बैठेंगे नहीं शांति से हम। आई डोंट हैव एनी अदर वे टू एक्सप्लेन कि लाइक व्हाई आर दे डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। मैं सच्ची बताऊँ, मेरे को तो दिल्ली वाले जो इलेक्शन है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा डाउट है इस टाइम पे कि सही में बीजेपी जीती है या फिर तिकड़म है वहाँ पे भी। क्या है ना, मुझे लोगों का नहीं समझ आता जो इफ़ यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट, लेट्स से तुम अपने सोशल मीडिया पे जाके गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछ रहे हो, रूलिंग पार्टी का क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो यार लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया था या फिर ये लोग पावर में थोड़ा नहीं आया था। अब है वेस्ट ऑफ लाइफ, वेस्ट ऑफ एयर तो चलो जैसी भी है जो भी है, वेस्ट ऑफ वट एवर द AQI इज़। तू क्या दलाल बैठा है क्या यहाँ पे? ब्रेन वॉशिंग वैसे मैं बोल सकता हूँ इतने तरीके से हुई है, इतने सिस्टमेटिकली हुई है कि पढ़ाई लिखाई का इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है इस टाइम पे। पढ़ाई लिखाई से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग मैंने चुतियाए हुए देखे हैं इस वक्त, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे खास मित्र हैं, जिन्हें मैं मित्र बुलाता हूँ, तो फिर मेरे को लगता है कि अब बीजेपी के पास जब इतना दिमाग था ही पावर में आने का, या फिर जो भी तिकड़म वो खींचते हैं ये सब करने का, थोड़ा देश के हित में कर लो, देश के भले के लिए कर लो, सिटीजन्स की थोड़ी लाइफ आसान कर लो। भैंस की आँख खतरा खतरा कर रहा होता है वो, यहाँ खतरा वहाँ खतरा। अरे भाई खतरों के खिलाड़ी थम जा, कर ले, देशवासियों के झोले में भी थोड़ा दे दे। अपने झोले में लेके जाएगा या फिर अडानी अंबानी के झोले में भर देगा सब कुछ। मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जब वो वीडियो कॉल करता है तो सारा वीडियो कॉल पे भी, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल पे सब 4K में दिख रहा होता है। ब्लू स्काइज एकदम क्लियर, होराइजन दूर दूर तक जहाँ देख रहे हो साला सब कुछ क्लियर है, इतने क्लियर सनसेट। और फिर हम हैं यहाँ पे 360p की ज़िंदगी। At this point, all I want to say is don't be a puppet or a stooge. I think being a citizen, the least one can do is keep asking questions from your government. Be a smart citizen, don't be a fool.